یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے غریب کے گھر میں جنم لیا اور شادی بھی غریب سے ہوئی، لیکن پھر کیسے اس نے اپنی زندگی کو بدلا یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کہانی خاص طور پر ان لڑکیوں اور نوجوانوں کے لیے ہے جو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اس لیے اس کہانی کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کیسے بتاؤں ایک مزدور کی زندگی کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں، اس بات کو خوشحال لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ آگ لگی ہو وہی جگہ اس کی تپش کو جانتی ہے۔ میں نے بھی ایک مزدور کے گھر میں آنکھ کھولی جہاں بچوں کی ریل پیل تھی۔ میرے 4 بھائی تھے جن کو چھوٹی ہی عمر سے ابا نے کام پر لگا دیا تھا۔ کسی کو نان بائی کی دکان پر بٹھایا تو کسی کو ورک شاپ کے مالک کے حوالے کرائے کہ وہ چھوٹو بن کر ہنر سیکھ جائے گا۔ ایک کو چرواہے کے سپرد کیا اور ایک کو اپنے ساتھ ریت بجری ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ اپنے کم سن نازک سے لڑکوں کے ساتھ ابا نے یہ امر بمجبوری کیا۔ ظاہر ہے ایک مزدور اپنے 8 بچوں کو اکیلا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے کما کر نہیں کھلا سکتا۔ میرے والد خود ان پڑھ تھے، لہٰذا کسی بچے کو بھی پڑھنے نہیں بٹھایا۔ البتہ قرآن پاک کی تعلیم دلوائی ہم سب بہنوں کو۔ جو خاتون اپنے گھر قرآن پڑھاتی تھیں وہ ہماری پڑوسن تھی جو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا شوق دیکھ کر انہوں نے اردو کا قاعدہ اور 3 جماعت کی کتابیں پڑھا دی۔ یوں میں لکھنے کے لائق ہو گئی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، 4 مرلے کا گھر اور اتنا بڑا خاندان۔ بڑی بہن 17 سال کی ہوئی تو اس کی شادی کر دی۔ جس سے شادی ہوئی وہ نوجوان بھی ان پڑھ تھا اور مزدوری کرتا تھا۔ سچ ہے کہ مزدور کی بیٹی کو مزدور کا ہی رشتہ ملنا تھا، تاہم میرے والدین نے سکون محسوس کیا کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی۔ میری باقی بہنیں کڑھائی اور اڈے کا کام کرتی تھیں، میرا نمبر 3 تھا۔ بڑی بہن اپنے گھر میں غربت کے باوجود بہت خوش تھی۔ اس نے مستقبل کے بارے میں بنا تعبیر والے سہانے خواب نہیں دیکھے تھے۔ باپ کے گھر سے ہی صبر و قناعت سے جھولی بھر کر سسرال گئی تھی۔ جب ہی اس کو باپ کے گھر کی کوٹری کے بجائے اپنے شوہر کے 2 کمروں کا پکا گھر جنت جیسا لگا تھا۔ 2 سال کے بعد میری دوسری بہن کی شادی ہو گئی۔ وہ بھی صبر کی دولت جہیز میں لے کر گئی۔ اس کا شوہر بھی منڈی میں سبزی لگاتا تھا، اس کی اچھی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اس کے سسرال والے فطرت کے اچھے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ میرا رشتہ ایک جاننے والی نے کروایا تھا۔ گھر کے افراد میں 2 نندے تھے، ایک دیور، ایک جیٹھ اور ساس تھی۔ سسر نہ تھا، نندے چھوٹی تھیں۔ یہ لڑکا بھی مزدوری کرتا تھا۔ دیکھ بھال کے بعد میرا رشتہ بھی طے پا گیا۔ میری اور میرے بڑے بھائی کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی۔ میں بھی اپنی بہنوں کی طرح اپنے والدین کی رضا پر راضی تھی۔ میرا شوہر تنویر اچھا آدمی تھا اور گھر والے بھی اچھے لوگ تھے۔ شادی کے 15ویں روز تک تنویر کام پر نہیں گیا۔ 16ویں روز میں نے اس سے پوچھا کہ تم گھر پر رہتے ہو، کام پر کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کام ملتا ہی کب ہے، جاؤ تو صحیح گھر سے، تم کو کام پر بلانے کے لیے کوئی آئے گا نہیں۔ میرے کہنے پر وہ 2 روز تک کام کو جاتا رہا۔ رات کو کچھ روپے مجھے اور کچھ ماں کو لا کر دے دیے۔ مجھے لگا کہ آج میری خوشی مکمل ہو گئی، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ اس کے بعد تنویر اکثر گھر پر ہی رہتا۔ میرا دیور باقاعدگی سے کام پر جاتا تھا، وہ اچھا کماتا تھا اور اسی کی کمائی سے گھر چلتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ عورت کی بھی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ میری بہن کا شوہر بھی تو مزدور ہی تھا، لیکن وہ گھر پر نہیں بیٹھتا تھا، تبھی روز ہی کچھ نہ کچھ کما لیا کرتا تھا۔ اس کی دال روٹی بنا کسی رکاوٹ کے چل رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں سکھی تھی، لیکن تنویر کی کاہلی کے سبب مجھے بھی مفت خوری کے تانے سننے پڑتے تھے۔ یہ سب کچھ تنویر کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ کماتا تو یوں چھوٹوں کے ہاتھوں خوار نہ ہونا پڑتا۔ شادی کے 1.25 سال کے بعد میری بیٹی کی پیدائش کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی۔ اس کی پرورش کے لیے بھی مجھے پیسہ چاہیے تھا۔ سردیوں میں اس ننھی جان کی ضرورت کی چیزیں بھی موجود نہیں تھی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیمار ہو گئی۔ اسے شدید ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ میرے پاس اس کے علاج کے لیے روپے تک نہیں تھے۔ میرے گھر والے میری بیٹی کو دیکھنے آئے، میرا حال دیکھا۔ بچی سانس کھینچ کر لے رہی تھی۔ تبھی ماں نے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ بچی کو سسرال میں بغیر علاج کے کیسے لیے بیٹھی رہتی، اس لیے میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ اپنے گھر والوں کو پہلی بار سسرال میں اپنی حالت زار بتائی۔ ابا نے کہا بیٹی جب تک تیرا شوہر کام پر نہیں جائے گا تم یہیں رہو گی۔
बच्ची का इलाज ही कराना था, जीते जी उसको मारना तो नहीं था। 3 हफ्ते गुजरे कि तनवीर मुझे लेने आया। मेरे घर वालों ने अपना मुतालबा उसके सामने रख दिया तो तनवीर ने वादा किया कि वो काम पर जाया करेगा। मैं उनके साथ अपने घर वापस आ गई। तनवीर कुछ दिन वादे का पाबंद रहा और काम पर गया, लेकिन फिर वही बहाना कि काम नहीं मिलता। जिनकी हड्डियों को मेहनत की आदत न हो उनको हर काम ही मुसीबत लगता है। इस मर्तबा जब माली हालत के लिहाज से बहुत तंग और देवर की मोहताज हुई तो फिर वालिदैन के घर आ गई। 2 माह बैठकर खाया। अब मेरी छोटी बहन की शादी थी, इसके लिए भी मेरे वालिदैन को रकम दरकार थी, जबकि वो पहले ही बहुत गरीब थे। सोच समझकर फैसला किया कि मैं उन पर बोझ बनने के बजाय खुद मेहनत करके अपना और अपनी बेटी का बोझ उठाऊंगी। मैंने अपने घर से कुछ फासले पर एक खुशहाल घराने के यहाँ काम करना मंजूर कर लिया। वो अब्बा के पुराने जानने वाले थे। वो मुझे नाश्ता और दोपहर का खाना देते थे, दीगर जरूरियात भी देते थे। इतनी मिल जाती कि मेरा और मेरी बेटी का खर्चा पूरा हो जाता था। अब तनवीर को अपनी बेटी की याद सताने लगी। वो फिर मेरे पीछे आए और मुझे साथ चलने को इसरार करने लगे। मैंने इनकार कर दिया कि यहाँ मेरी अपनी मेहनत से अच्छी तरह गुजारा हो रहा है और सास नंदों के तानों से भी बची हुई थी। शौहर को भी बावर करवाना चाहती थी कि माशरे में एक काहिल आदमी का यही मकाम है। जब 2 साल गुजर गए, तनवीर न सुधरा बल्कि मजीद नाकारा हो गया। मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी। तनवीर के घर वालों ने जब देखा कि मेरा पलट कर आने का कोई इम्कान नहीं रहा तो उन्होंने एक शरीफ घराने की एक ऐसी लड़की तलाश कर ली जो मैट्रिक पास थी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जेठ और देवर ने सोचा कि रिजवाना नहीं आई तो इसी बेवा की लड़की से तनवीर का ब्याह करते हैं। बेवा बेचारी को सहारे की जरूरत थी और उसकी लड़की मुलाजमत कर रही थी। उन्होंने तनवीर की दूसरी शादी की बात की तो मेरा शौहर न माना। उसको अपनी बेटी से प्यार था, हालांकि उसके पास वो थोड़े ही दिन रही थी। तनवीर ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मैंने सोचा कि अगर वो बच्ची की वजह से दूसरी शादी से इनकार कर रहा है तो मैं क्यों तनवीर को ठुकराऊं। आखिर तो वो मेरी बच्ची का बाप है। बेहतर है कि इसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करूं। मैं भी मैके में उम्र भर नहीं समा सकती थी। असल में तो ये मेरे भाइयों का घर था। आज या कल मुझको यहाँ से रुखसत होना ही था। मेरी बेटी बाप के साए में नहीं थी। तनवीर अगर मुझे तलाक दे देता तो ये दोनों में से किसी एक से महरूम हो जाती। ऐसा ना हो कि तनवीर को निखट्टू होने का एहसास दिलाते दिलाते मैं कहीं की न रहूं और बच्ची को बर्बाद कर बैठूं। पहले शौहर से राब्ता किया और कहा कि मैं वापस आने को तैयार हूं, बशर्ते कि तुम मुझको किसी के घर में काम करने की इजाजत दो ताकि मैं वहां से पैसे की मोहताज न रहूं। मेरे जेठ ने इजाजत नहीं दी और किसी के घर काम करने से सख्ती से मना कर दिया। बिलाखिर मैंने तनवीर से कहा कि तुम ही हमारी तरफ आ जाओ क्योंकि बगैर कमाई के तो हमारा गुजारा नहीं होगा। उसने मेरी बात मान ली और अपने भाइयों को छोड़कर हमारे घर आ गया। उसने मेरी बात मान ली क्योंकि वो खुद भी तो भाइयों का ही दस्तनगर था। मेरे वालिद के घर की छत पर एक कोठरी बनी हुई थी जिसमें फालतू सामान पड़ा हुआ था। मैंने उसको साफ किया और हम उसमें रहने लगे। अब मेरा शौहर बच्ची को संभालता तो मैं एक के बजाय 2 घरों में काम करने लगी। कुछ अरसे के बाद जब दूसरे भाई की शादी की बातें होने लगी तो मैंने सोचा आखिर मैं अपने और अपने बच्चों के हमरा मैके में कुछ अरसे रह सकती हूँ, उम्र भर तो नहीं। अगर अभी से तल्ख हकीकत के बारे में नहीं सोचा और कोई तदबीर नहीं की तो कल भाइयों और भाभियों का रवैया बदल जाएगा। मुझे और मेरे शौहर को इज्जत नहीं मिलेगी और ऐसे रवैयों से मेरी बच्ची के जहन पर बुरा असर पड़ेगा, जबकि उसके मामू ममानी और उनके बच्चे उसको इज्जत व कद्र की निगाह से नहीं देखेंगे। बड़ी भाभी मुझे अभी भी तीखी निगाहों से देखती है। मैं घरों में काम करती थी, उनके वहां मैंने कमेटी डाली। 2 साल तक इन कमेटियों की रकम उनसे न ली और जब मेरे शौहर ने 4 मरला जमीन सस्ती बिकती पाई तो मैंने अपनी कमेटियों की रकम लेकर वो प्लॉट उनके जरिए खरीद लिया था। ताहम उस पर एक कमरा बनाने की इस्तेताअत नहीं थी। मैंने भाइयों से मशवरा किया, उन्होंने तनवीर को अपने साथ मिला लिया और अब मेरा शौहर मेरे भाइयों के साथ काम पर जाने लगा। मैंने भी शाम को उसके घर के पास भाड़ बना लिया। अब मैं अपनी तनख्वाह का एक ढेला भी खर्च न करती। कुछ तनवीर की मजदूरी की उजरत और कुछ तंदूर पर रोटियां लगाने की वजह से हमें गुजारे की रकम मिल जाती। जब इतनी रकम हो गई कि हम प्लॉट पर 2 कमरे बना सके तो तनवीर और मेरे मजदूर भाइयों ने मिलकर वहां 2 कमरे खुद बना लिए। 4 दीवारी की रकम मेरे चारों भाइयों ने मिलकर दी। यूं हमें सर छुपाने का ठिकाना मयसर आ गया।
जब मैं अपने 4 मरले के मकान में आ गई तो यहाँ मेरे बेटे अहमद की पैदाइश हुई। दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर मेरे लिए काम पर जाना मुमकिन नहीं था, जबकि अहमद की पैदाइश से खर्चे में भी इजाफा हो चुका था। मैं अब अम्मी के पास बच्चे को छोड़कर काम पर जाती। मेरे शौहर को एक वर्कशॉप पर मुलाजमत मिल गई। कुछ ही दिनों के बाद बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका हाथ मशीन में आ गया और वो एक हाथ से माजूर हो गए। इसके साथ वो शदीद अलील होकर बिस्तर पर लग गए। अलील और माजूर जीवन साथी के साथ 2 बच्चों का बोझ, 4 नफूस की रोटी रोजी का इंतजाम मुझ कमजोर और तन्हा औरत के लिए बहुत मुश्किल था। मरीज को संभालने के लिए तो हम वक्त आपको उसके पास रहने की जरूरत थी। काम पर कैसे जाते, ये वक्त बहुत कड़ा था। मेरी जिंदगी का इम्तिहान था। मुझको शदीद ज़हनी और माली परेशानियों का सामना था, जिससे मैं भी ज़हनी मरीजा बन गई। अब मैं खुद को बदकिस्मत तस्वर करने लगी। मेरी बहनों की शादियां गरीब घरानों में हुई थी, लेकिन वो पुरसुकून थी, जबकि मैं मुसलसल परेशानियों से लड़ रही थी। जिंदगी में देखा ही क्या था, ख्वाहिश भी की तो 2 वक्त की रोटी और एक छोटे से घर की कि यही इंसान की बुनियादी जरूरियात होती हैं कि जिनके बगैर वो जी नहीं सकता। मेरे भाई कौन से साहूकार थे, वो बेचारे भी तो मजदूरी ही करते थे, कब तक मेरी इमदाद करते। अब मैं जिंदगी से मायूस और जीने से तंग आ गई थी, लिहाजा खुदकुशी के बारे में सोचने लगी। शौहर का कमजोर जिस्म एक लाश की मानंद बिस्तर पर धरा था। बच्चे मेरी माँ के घर खाने की खातिर जाते। भाभी न जाने किस दिल से उनके आगे थाली में उबले हुए चावल या एक रोटी रख देती थी। मैं अक्सर फाकों से होती। माँ को मौका मिलता तो आकर मुझे खाना दे जाती। अब मुझ पर थकन और नकाहत की कैफियत तारी होने लगी। किसी में भी दिलचस्पी नहीं रही, शौहर में और न ही बच्चों में। एक रोज चारपाई पर लेटी अपने हालात को देखकर सोच रही थी और मौत की शदीद ख्वाहिश कर रही थी। आंखें खोलकर दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह ऐसी नींद दे कि ये आंखें दोबारा न खुलें। मेरे बच्चे उसी वक्त माँ ने मेरे घर के अंदर कर दिए और वो खुद बाहर से लौट गई। बच्चे खेलते खेलते अंदर आए। बच्चों को आज शायद नानी के घर से रोटी नहीं मिली थी और आते ही खाना मांगना शुरू कर दिया। अम्मा जो 2 दिन पहले थोड़े से कच्चे चावल और दाल देकर गई थी, वो पकाकर तनवीर को खिला दिए थे। अब तो घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। खुद भूखी पड़ी थी, बच्चों को क्या खिलाती। मेरी बेटी मुझे पुकारती रही और रोटी मांगती रही। जब वो मेरी पुकार न सुनी तो वो परेशान हो गई और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उसकी देखा देखी अहमद भी रोने लगा। मैं भी बहरी बनी रही। इतनी देर में अहमद बावर्ची खाने की मेज पर चढ़ गया। शायद कुछ खाने की तलाश में डब्बा खोल रहा था कि उसका पांव फिसल गया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। आगे कोई बर्तन रखा हुआ था जिसका किनारा उसके माथे पर लगा और खून बहने लगा। उसकी दिलखराश चीखों से मैं उठ बैठी। उसके बहुत जोर की चोट आई थी। माथे और नाक से खून बह रहा था। अम्मी ने बच्चों को इसलिए घर जल्दी लौटा दिया कि भाभी की अम्मी से लड़ाई हो गई थी। ये मेरी चंद लम्हों की बेखबरी का नतीजा था कि मेरा बेटा जख्मी हो गया था। अगर मैं मर जाती, मेरी दुआ किसी तरीके से कबूल हो जाती, तो मेरे बच्चों का क्या होता? ये अल्लाह ने मुझे दिखाया था। ये सोचकर क्यों अपने रब की रहमत से मायूस और नाउमीद हुई। मैंने अपने परवरदिगार से माफी मांगी, तौबा की और दोनों को साथ लिपटा लिया। बहुत देर तक रोती रही। थोड़ी देर पहले मैंने जो तनवीर के खिलाफ सोचा था, अब हमदर्दी से सोचने लगी कि जो भी है ये मेरे बच्चों का बाप है। इसने मुझे छोड़ा नहीं, तो अब जबकि वो माजूर हो गया है, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ? तभी सोच लिया था कि हालात जैसे भी हों, मैं अल्लाह से आस लगाए रखूंगी और अपनी हिम्मत से ही इन हालात को बदलूंगी, क्योंकि कोई दूसरा किसी के हालात नहीं बदल सकता। ऐसे में अल्लाह की जात से दुआ और अपनी हिम्मत ही काम आती है। मेरे लिए अब लोगों के घरों में काम करना मुमकिन नहीं था, लेकिन जहां काम करती थी वो अब भी मेरी मदद करने पर राजी थी। मैं उनके घर गई और कुछ रकम उधार मांगी। उन्होंने ये रकम मुझे दे दी। मेरे घर के पास भाड़ वैसे ही लगा हुआ था। रात को सारे मोहल्ले की औरतें आकर मुझसे रोटी बनवाने लगी। यूं मुझे रोज रोटियां और पैसे मिल जाया करते और आटा भी मिलने लगा। लेकिन ये काफी नहीं था। तनवीर को अभी तक इलाज की जरूरत थी। अभी जख्म हरा था। वो ना तो काम कर सकता था और ना ही उसकी कमजोरी दूर होती थी। नकाहत के बायस वो तो उठ तक नहीं पाता था। भाड़ में आग सुलगाते और तंदूर पर रोटियां लगाते मेरा ध्यान किसी और ही सिमत लगा रहता। ऐसा क्या करूं कि मेरे घर के हालात सुधर जाएं? मैं अब दोपहर को भी तंदूर लगाने लगी, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा काम करना था। मेरी माँ का घर आबादी में ही था, जबकि मेरा घर उनके मकान से थोड़ा हटकर था। जहाँ आबादी कम थी, यहाँ खाना बदोशों की कसरत थी।
अक्सर भूले भटके मुसाफिर इधर का रुख करते। घर के करीब ना तो कोई चाय खाना था और ना ही कोई होटल। बाजार भी दूरी पर था और इर्द गिर्द दुकान भी एक आधी थी। भाड़ और तंदूर दोनों मुझे मुतमईन न कर सके। हालांकि अतराफ में जितने घराने थे, गर्मियों के बायस खुद घर पर रोटियां बनाने के बजाय मुझसे ही लगाते थे और खाना बदोश भी आ जाते थे और कहते, अगर तुम दाल रोटी पकी पकाई फरोख्त करना शुरू कर दो तो और अच्छा है। मैं इसी बारे में सोचने लगी। तभी मैंने एक और तरीका सोचा कि मैं सुबह का नाश्ता पकाकर तंदूर के पास रख लेती। लोग आलू भाजी और चावल छोले लेने आते थे। घी के पराठे भी बनाने लगी, वो भी शौक से। सुबह नाश्ते के वक्त चाय और पराठे लेने लगे। मेरी कमाई में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। ताहम ये जरूर कहूंगी कि रब साथ न देता तो किसी काम में कामयाबी नहीं। मेरा रब मेरा साथ दे रहा था और मैं दिन रात चूल्हे के पास बैठी मेहनत करती थी। मेरा ये काम इतना चला कि मुझे लगने लगा कि एक छोटा सा होटल होता तो क्या ही बात होती। लेकिन मैं औरत जात एक भटियारन तो बन सकती थी, मगर चाय का होटल तन्हा नहीं खोल सकती थी। लोग मेरे खानों को पसंद करते और मुझसे आलू और गोभी के पराठों की फरमाइश करते। तनवीर की सेहत बेहतर हो रही थी, मगर वो मेहनत करके काम नहीं कर सकता था। मैंने बड़े भाई की मिन्नत समाजत की कि एक कमरा मुझे छत बना दो ताकि अपना रहन सहन रखूं और नीचे के घर में ढाबा या होटल खोल दो ताकि लोग यहाँ बैठकर खा पी सके। पहले तो भाई ने इस बात को नामुमकिन और दुरुस्त न जाना। फिर छोटे दोनों भाइयों ने मेरी तजवीज की हिमायत की तो उन्होंने मिलकर मुझको कमरा और गुस्ल खाना ऊपर बनाकर दे दिया। मैंने नीचे का कमरा खाली कर दिया। दोनों कमरों में दरियां बिछा दी, जिन पर दस्तरखान लगाकर फर्शी निजाम कर दिया और सहन में चारपाई और चंद कुर्सियां मेजें लगा दी। यूं मेरा ढाबा खुल गया। तनवीर का काम गल्ले पर बैठकर रकम लेना था और मेरा काम ऊपर पकाना। हमने एक गरीब लड़का मुलाजिम रख लिया जो खाने पीने का सामान नीचे लाकर ग्राहकों के आगे रखता और झूठे बर्तन धोकर ऊपर लाकर मुझे देता। कुछ वक्तों के बाद हालात बेहतर होते गए। हमने ढाबा एक होटल में तब्दील कर दिया। तनवीर इस होटल का मालिक था। मेरे बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ने लगे। हमने शहर में एक बेहतरीन कोठी खरीद ली। यूं हम गरीबाना जिंदगी से अमीराना जिंदगी की तरफ लौट आए। मुझे एतराफ है कि मैंने अपनी जिंदगी के दुखों से बहुत कुछ सीखा है। कभी गलत और कभी सही फैसले किए। कुछ दुख पाकर भी खुदा की याद से मायूस न हुई। इस अजीम ताकत ने भी मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि जब मैंने हिम्मत से काम लिया उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा। इंसान जब दुखों की आग में जलता है तो वो मजीद निखरता है। अगर मैं मायूस होकर हिम्मत हार जाती तो मेरा घर बिखर जाता और बच्चे शदीद रुल जाते या फिर छोटी सी उम्र में मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते और मेरा इनको तालीम दिलवाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाता। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। अहमद सरकारी इदारे में अच्छे ओहदे पर है और मेरी बेटी भी सरकारी स्कूल में टीचर है। इसलिए जिंदगी के किसी मोड़ पर हिम्मत न हारे, मायूस न हो, बल्कि कोशिश करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे।